हाँ, नेक्स्ट सेक्टर इज जो है वो सीडीएमओ, फार्मा सीडीएमओ। उसका वैल्यूएशंस मैट्रिक्स देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीडीएमओ? सीडीएमओ जो है वो जनरली जो है वो ड्रग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर बिग इनोवेटर कंपनीज। फार्मा कंपनी जो यूएस बेस्ड है उनके लिए करती है, ठीक है ना। तो फार्मा कंपनी जो है क्यों आउटसोर्स करती है? टू सेव टाइम, रिड्यूस कॉस्ट, लिवरेज स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज के लिए, ठीक है ना। तो क्या क्या जो है वो एनालिटिकल टेस्टिंग करती है, रेगुलेटरी सपोर्ट, स्केल अप, है ना, कमर्शियल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारा काम जो है वो सीडीएमओ कंपनीज के द्वारा जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो प्राइस टू सेल्स, ईवी टू एबिटा, पी रेशियो, मार्जिन, ये जो है तीन चार जो चीजें हैं इनसे जो है इसको वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। So this matrix offers into the company's financial health, profitability, growth potential, market perceptions, ठीक है ना। तो प्राइस टू सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रेवेन्यू फोकस्ड for CDMO companies, which is primarily providing manufacturing services to the pharmaceutical companies, sales are the key indicator business performance, right? So price to sales ratio gives an investor an understanding how much of right, how much of they are paying for each unit of the sales relative to company size and market potentials, ठीक है ना। Revenue visibility, CDMO often enter a long term contract with the clients which provide revenue stability and predictability, है ना। तो price to sales ratios can help investor assess whether company is being valued appropriately for its revenue generating capabilities, ठीक है ना। Low margin business, many pharma CDMOs operates on relatively low profit margins compared to the pharmaceutical manufacturer because their services are based on the contract agreements rather than the proprietary drug sales, ठीक है ना। Okay, so high growth, if a pharma CDMO is experiencing high growth in terms of sales due to increasing demand for generic drugs or manufacturing capacity for COVID-19 vaccine, the PS sales will reflect market optimism about its ability to scale and attract more contracts। अगर ज्यादा बहुत बड़े कॉन्ट, जैसे कोविड के समय में जो है सारी फार्मा कंपनीज के जो है प्राइस टू सेल जो है काफी इन्फ्लेटेड हो गए थे बिकॉज दे आर गेटिंग लार्जर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। हाँ, सो देन सेकंड जो है क्राइटेरिया दैट विल बी द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मा सीडीएमओ कंपनीज? Profitability comparison, the P ratio helps evaluate whether the market is overvaluing or undervaluing a pharma CDMO based on current earning, है ना, based on the current earning। तो CDMO might not have the same high margin as the drug companies, but इनका जो रहता है consistent earning रहती है। Profitability from the contracted service make the P ratio useful measure। तो इनके पास जो एक ये रहता है कि कंसिस्टेंट अर्निंग की विजिबिलिटी रहती है, ठीक है ना, फ्रॉम दी लॉन्ग इनोवेटर, है ना। मार्जिन उतने हाई नहीं रहते। सो पी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मार्केट एक्सपेक्टेशन, द पी रेशियो गिव्स एन इन्वेस्टर अ सेंस ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर फार्मा, है ना। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज एन अट्रैक्टिव फैक्टर, तो पी रेशियो उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। So P ratio can assess the whether a company is right, whether a company is expecting deliver strong earning growth in long run, ठीक है ना। तो अगर एक फार्मा सीडीएमओ है जो है लाइक डीवीज है, आपका लॉरेस है ना, ब्लू जेट है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। विल सी द एग्जांपल्स इंडिया बेस्ड, ड्यू टू इस कॉस्ट एडवांटेज एंड दे आर हाई पी रेशियो मिलता है इनको। might have a valued at premium because investor expecting strong earning growth as तो earning growth अगर strong मिल रहा है तो definitely it will be having a आपका जो है वो high P will be there। EV to EBITDA, एसेट हैवी बिजनेसेस जितने भी रहेंगे उसमें EV to EBITDA आएगा ही। EV to EBITDA is useful for understanding the company's enterprises relative to operating profitability। This is crucial for pharma, क्योंकि ये लोग जो फार्मा कंपनी है उनकी जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, R&D फैसिलिटीज है, लेबोरेटरीज है ना, और लोअर प्रॉफिटेबिलिटी देन द ड्रग कंपनीज बट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैश फ्लो। इनके पास एक ऑपरेशनल कैश फ्लो तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो है वो चूंकि इनको नए प्लांट्स R&D पे पैसा डालना है, लेबोरेटरीज क्रिएट करना है, तो वहां पे हो सकता है डिप्रिशिएशन
इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब जो है वो आपका जो है वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट विल कम इनटू पिक्चर। तो इसके कारण जो है क्या होगा कि आप इसमें जो है वो सो दैट विल बी अ रीजन कि इनके के जो रहेंगे डिप्रिशिएशन बहुत हाई रहेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट भी रहेगा, तो उसके लिए ईवी टू ईबिटा विल बी अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर द वैल्यूएशन। तो एटलीस्ट ऑपरेशनल कैश फ्लो तो इनके पास रहेगा ना। तो बेस्ड ऑन कितना एक मतलब क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, ये भी इसमें यूजफुल रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन विद पीएस, तो capital structure independence, EV EBITDA ratio removes the influence of capital structure with which is primarily particularly important for CDMO, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन लोग के पास डेप्थ, क्योंकि नए प्लांट्स बनाने हैं, तो बेटर स्ट्रक्चर एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना। कंपैरिजन विद पीयर, द EV to EBITDA मैट्रिक्स अलाउ इन्वेस्टर टू कंपेयर फार्मा CDMO ऑफ डिफरेंट साइज कैपिटल, प्रोवाइडिंग इंसाइट इन रिलेटिव वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द सेम सेक्टर। सेम सेक्टर में कंपैरिजन पीएस के साथ ईवी टू ईबिटा जो है वो आपको बताता है, ठीक है ना। लो ईवी टू ईबिटा रेशियो माइट अंडरवैल्यू कंपनी टू इट्स पीयर, market has not fully recognized its operational efficiency and future earning potentials in an expanding pharmaceutical, है ना, outsourcing market। चौथा जो है मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मा profitability analysis, margin are critical because they reveal how well the company can translate its revenue into profit. For CDMO, profitability is often driven by economic scale, capacity utilization and contract pricing, है? मतलब मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ग्रॉस मार्जिन मतलब रॉ मटेरियल, है ना। CDMO are often involved in manufacturing generics, active pharmaceutical ingredients, है ना। तो ग्रॉस मार्जिन गिव्स इनसाइट हाउ इफिशिएंटली कंपनी इज प्रोड्यूसिंग गुड्स रिलेटिव टू इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल कितना इन्फ्लेटेड है कि लो है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इनके ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सपोज जो है इनका ग्रॉस मार्जिन जो है बहुत ही कम है, इसका मतलब जो है क्या, मतलब अगर 60-70% रॉ मटेरियल में ही अगर चला जा रहा है, सो दैट विल बी अ वेरी लो पॉइंट फॉर दिस फार्मा कंपनी, CDMO कंपनीज। द मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग मार्जिन, सेल्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट विल बी ऑल्सो डिपेंड ऑन द, वो डिपेंड करेगा इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना अच्छा होगा। देन फाइनल नेट मार्जिन, अगर इनके डेप्थ है, टैक्सेस है, इंटरेस्ट है ना। Net margin reflect overall profitability of all cost. High net margin can signal that pharma CDMO is effectively managing its cost structure and solid operating leverage and maintaining its solid operating leverage, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसमें डीवीज है। डीवीज लैबोरेटरीज देखते हैं। So 38% to 31% एवरेज जो है 30-35% दे आर हैविंग ऑपरेटिंग मार्जिन, है ना। ग्रॉस मार्जिन भी काफी अच्छा है इनका। सी ग्रॉस मार्जिन देखने के लिए 37%, 36, 38, 39, सो अराउंड 37-38 जो है इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। सो दे आर हैविंग अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 60-65%। 60-65% दे आर हैविंग अ ग्रॉस मार्जिन, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट पे डिपेंड करता है ऑपरेटिंग मार्जिन। एंड नेट मार्जिन भी काफी हाई है, लाइक अराउंड 30%। लुक एट दैट, 35%। आपका 9,000 सेल्स पे 2,000 जो है वो नेट प्रॉफिट है, सो वेरी हाई। सो इस तरीके से जो है वो इनको वैल्यूएशन जो है, दैट्स व्हाई द वैल्यूएशन इज वेरी हाई फॉर दैट, द P is 70-80 P, right? So pharma CDMO with strong margin indicates an efficient cost structure and right। तो यहाँ पे जो है वो तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। की टेक अवेज, प्राइस टू सेल्स हो गया, डिस्कस कर लिए। रिविशय हो गया, मार्जिन, चारों डिस्कस कर लिए। एग्जांपल्स देख लेते हैं। डीवीज लैबोरेटरी अभी देखा है मैंने। पी रेशियो जो है ये अभी तो इसका जो है वो 80 चला गया है पी रेशियो जो है। ईवी टू ईबिटा भी जो है वो, ल्यूपिन है, आरती ड्रग्स है, ये सब कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हैं, ठीक है ना। लॉरेस लैब इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल CDMO में, जिसका जो है वो काफी अच्छा CDMO में कर रहे हैं, तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, न्यूलैंड लैब्स काफी समय से काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना। दिस इज आल्सो गेटिंग वेरी गुड
64p। सो इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्जिन जो है वो काफी अच्छे हैं। 300 1500 पे जो है वो है ना, 300 मतलब कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो है वो 15%, राइट। कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू आपका जो है वो इंटू 100। तो इस तरीके से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी लिखता है 14 करोड़ से जो है इट इज 14 करोड़ से 300 करोड़, है ना। 58 से 379, 463 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसके कारण इसके चार्ट में भी आपको देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर से इट हैज वेरी गुड, है ना, इस टाइप से। तो इसका जो प्राइस टू सेल्स है, मार्केट सेल्स भी इट इज, पहले तो ये कितना हो गया था 1.8 और ये सब में रहता था, नाउ द मार्केट इज प्राइसिंग अप टू 14 गया हुआ है, इट इज ऑन अ हाई लेवल। सो दिस वे द कंपनी विल बी वैल्यूइंग, राइट। ओके, न्यूलैंड लैब हो गया, जेट हेल्थ केयर और कुछ एग्जांपल हो गए। तो इस तरीके से ये एक कंक्लूजन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यूएशन ऑफ जेनरिक फार्मा बिजनेस। जेनरिक फार्मा बिजनेस जो पेटेंट ऑफ होती है बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज की, उसके बाद जो है कोई भी जो है वो कंपनी, फार्मा कंपनी जो है उसका जो है वो जेनरिक वर्जन जो है बनाती है। सो बेस्ड ऑन दैट उसको जो वैल्यूएशन जो है प्राइस टू अर्निंग, क्योंकि इनको कोई बहुत ज्यादा R&D या वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग विजिबिलिटी रहती है इनकी, ईवी टू एबिटा। बट ओनली प्रॉब्लम इज द इरोजन ऑफ द प्राइसेस। बहुत ज्यादा अगर उनके और नए नए ब्रांड्स आ गए तो बहुत ज्यादा कंपनियों ने उस कंपनी के बारे में उस कंपनी को उस दवाई को बनाना चालू किया, तो देयर विल बी अ प्राइस इरोजन दैट, देन बिकॉज ऑफ दैट द पी विल बी कंप्रेस। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ईवी टू एबिटा, प्लांट्स, FDA, ये सब में भी इनको पैसा लगता है, R&D पे नहीं, तो हमसे हम प्लांट FDA तो लगेगा ही, है ना। तो एंटरप्राइजेस वैल्यू, सो फॉर दी फॉलोइंग, तो प्राइस टू अर्निंग ड्रिवन बिजनेस होता है। जेनरिक फार्मा कंपनीज आर ऑफन प्रिडिक्टेबल रिकरिंग अर्निंग वंस द ड्रग इज लॉन्च्ड, है ना। मैच्योर प्रोडक्ट, सिंस जेनरिक्स आर आपका जो है टिपिकली ऑफ पेटेंट ड्रग होता है ना, देयर इज लेस R&D वॉलेटिलिटी एंड मोर स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन्स, है ना। इन्वेस्टर यूज P टू एसेस हाउ दे आर पेइंग फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रॉफिट, स्पेशली व्हेन द प्रॉफिट्स आर स्टडी। A low P indicate over undervaluation, possibly due to price erosions or regulatory risk. अगर लो पी है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस इरोजन हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। हाई पी कैन रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, है ना, एंड फेवरेबल। जैसे इंडियन जो कंपनी है, जेनरिक कंपनी है, दे आर वेरी हाई पी, लाइक इप्का लैब हो गया, इप्का लैबोरेटरीज हो गया, हाई पी कंपनीज है, राइट। तो इनका जो है मार्जिन भी अच्छा है ना। वैसे ही अगर डॉक्टर रेड्डीज देखते हैं, सो मार्जिन इज नॉट वेरी हाई लेवल, बट है ना, काफी जो है 13,000 से, सी स्टॉक पी इज नॉट वेरी ह्यूज, क्योंकि इनका जो है वो ग्लोबल जेनरिक का जो ग्रोथ है दैट इज 18%, लेकिन उसमें जो है आप मार्जिन देखेंगे, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स का देख सकते हैं कि कैसा क्या मार्जिन है उसका, है ना। ग्रोथ इज 16%, मार्जिन कितना है। ओके, सो ईवी टू एबिटा, नेचुरल टू कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो है ईवी टू एबिटा इज अ बेटर देन पी व्हेन कंपेयरिंग कंपनीज विद अ डिफरेंट डेप्थ लेवल, है ना। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज अ की प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, स्केल एंड कैपेसिटी टू द एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे। सो अगेन जो है ये डिफरेंट जो भी डेप्थ लेवल है यहाँ पे जो है, क्योंकि नया प्लांट्स बनाने हैं, जेनरिक कंपनीज हैं, इनको भी जो है, तो उसमें जो है एक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है रहता है, तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन के चांसेस हैं और दूसरी भी है ना प्रॉब्लम्स आती है। तो ईबिटा एक अच्छा वैल्यूएशन मैट्रिक्स है फॉर दी फार्मा कंपनी, ठीक है ना। लोअर ईवी टू ईबिटा में सजेस्ट अंडर वैल्यूएशन, स्पेशली इफ ईबिटा मार्जिन्स आर सस्टेनेबल, है ना। इट इज यूजफुल क्रॉस कंपनी कंपैरिजन, डिफरेंट कंपनी सेम फार्मा कंपनीज है, वो जो है कितना एबिटा जो है नए नए प्लांट्स, क्योंकि वो लोगों ने कैपेक्स कर रखा है, तो डिप्रिशिएशन के कारण उनका नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन होके दिखेगा। तो सेम सेक्टर मतलब ईवी टू एबिटा वो उसमें जो है आपको दिखेगा, ठीक है।
अरबिंदो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, इन सब में जो है वो देख सकते हैं आपका जो है वो ल्यूपिन है ना, ल्यूपिन है। ईवी टू ईबीटा जो है 17.7 है। आई थिंक एग्जांपल्स मैंने नीचे ही दिया हुआ है इसमें, है ना। ईवी टू ईबीटा जो है वो 9 है ना। इस तरीके से वो देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द वो लिख सकते हैं अंडर वैल्यू है इंडस्ट्री में। तो जो स्ट्रॉन्ग है, सिप्ला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, पी रेशियो भी अच्छा मिला है, ल्यूपिन है, ठीक है ना, एज ऑफ डेट अर्ली 25। सो लास्ट वन इज द आपका जो है एपीआई कंपनी। एपीआई क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ जो आपका जो रहता है ना, बेसिक फॉर्म ऑफ ड्रग्स जो बनाती है कंपनी, उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो पाउडर, मतलब एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं कि जो मेन इंग्रेडिएंट इन ड्रग प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है ना। तो जैसे पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल इज द एपीआई। अब उसको कोई क्रोसिन के नाम से, कोई कैल्पॉल के नाम के बेचता है, डिफरेंट कंपनी है, उनका डिफरेंट है ना। लिपिटॉर है ना। तो एटोरवेस्टिन इज द एपीआई। मतलब एपीआई जो जैसे किसी भी जैसे कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक है, उसका जो मेन जो रॉ मटेरियल है, रॉ पाउडर जो भी लगेगा, दैट इज अप। जैसे फीवर के लिए जो है वो क्या है? पैरासिटामोल है ना। तो दैट इज तो उसके लिए जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? सेम मैट्रिक हो सकता है आपका, दैट इज प्राइस टू अर्निंग, आपका प्राइस टू सेल्स, मार्जिन बिकॉज ऑफ द यूनिक इकोनॉमिक्स, है ना। एंड जो है वो इकोनॉमिक्स हो गया, एंड मार्जिन बिकॉज ऑफ दी, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग, अगेन एपीआई बिजनेस आर कैपिटल इंटेंसिव, बट वंस स्केल्ड दे जनरेट अ प्रेडिक्टिव अर्निंग्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। A stable, profitable API manufacturer can be evaluated based on its earnings, ठीक है ना। तो investor compare PE across the sector to determine relative valuations, how cheap and expensive company is based on its profits, ठीक है। Price to sales, again API are often commoditized business होता है, क्योंकि ये raw material है, which price pressure due to intense competition, बहुत intense competition होता है, उसके कारण जो है वो प्राइसिंग जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। तो सेल्स ग्रोथ इज अ क्रिटिकल, जितना अच्छा सेल्स होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स जो है वो अच्छा होगा, प्रॉफिट मार्जिन में फ्लक्चुएट ड्यू टू रॉ मटेरियल ऑन द प्राइसिंग वॉटिलिटी। तो सेल्स, प्राइस टू सेल्स इज अ गुड मैट्रिक्स टू आपका वैल्यू करने के लिए, ठीक है ना। मार्जिन्स, margin is also very important, how efficiently the company converts sales into the profits, bargaining power in procurement and pricing, product mix, commoditized API, special APIs होते हैं उसमें मार्जिन अच्छा रहता है ना। सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव इन द कॉस्ट, ठीक है ना। ये सब आपका जो है वो न करेगा। सो डीवीज लाइबिलिटी, नेवर, न्यूलैंड, सोलारा, और भी बहुत सारी जो है वो एपीआई, लॉरेस लैब, दीज आर द एपीआई कंपनीज व्हिच कैन वी कैन लुक इनटू दैट। Next segment is EMS players, electronic manufacturing services companies। valuation typically क्या होता है यहाँ पे? जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, डिक्शन हो गया, साइरामा हो गया, एवलेंच, है ना, ये जो है ये आपके जो है मोबाइल से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। ये ओरिजिनल जो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या कंपोनेंट्स बनाती है, ठीक है ना। तो प्राइस टू अर्निंग, सेल्स ग्रोथ एंड ईबिटा मार्जिन, थ्री थिंग्स वी हैव टू लुक फॉर दैट। EMS बिजनेस आर वॉल्यूम ड्रिवन विद कॉन्स्टेंट प्रॉफिट। अब एडिक्शंस का देखते हैं कि इसका जो है ना, वॉल्यूम ड्रिवन है। 767 था, अभी जो है 33,000। लुक एट द प्रॉफिट एंड द, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन इज वेरी लो। तो ये जो है यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो यू कैन नॉट जनरेट अ गुड प्रॉफिट। इन्वेस्टर एसेस हाउ एफिशिएंटली अर्निंग्स आर ग्रोइंग रिलेटिव टू द स्टॉक प्राइसेस, ठीक है ना। So that's why PE is a very good guy. Image has thin margin but scalable operation, बहुत scalable है, जितना ज्यादा डिमांड रहेगा, ठीक है। तो low PE might indicate the undervalue and cyclicality, and high PE could suggest the strong। इसका देखिए high PE, very high PE, and the growth is happening, sales में growth देखिए 45, 65 something average हो रहा है इसका। Why critical? EMS is a low margin, how volume, टॉप लाइन ग्रोथ इज एसेंशियल टू ड्राइव द प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। तो क्लाइंट एडिशंस, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट डिमांड, ठीक है ना, ये सब देख सकते हैं। तो फास्ट ग्रोइंग एमएसएस ऑफन रिसीव प्रीमियम वैल्यूएशन इफ दे आर स्केलिंग एफिशिएंटली। तो इस बेसिस पे वैल्यू कर सकते हैं। ईबिटा मार्जिन शोइंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस है,
फिर भी इनपुट कॉस्ट हो जो सेल्स आपका जो है SGA जो है उसको जो है सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एफिशिएंसी इन मैनुअल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप इन सब चीजों को कंट्रेक्ट करके वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डिक्सन है, साइरामा है, लुक एट दैट डिक्सन, EBITDA मार्जिन इज 1.8 7 पॉइंट, हाई वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट्स है ना, पर पी जो है वो हाई है ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर को जो है हम वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके।